Hello students, welcome to my channel Dear Ma'am. Whenever in doubt, ask Dear Ma'am. Students, today we will study a lesson in English for the students of class 10th from your Footprints Without Feet book, and the name of the chapter is A Triumph of Surgery, which is written by James Herriot. स्टूडेंट्स, इस कहानी का वर्णनकर्ता मिस्टर हैरियट हैं, जो एक पशु चिकित्सक भी हैं. सो नाउ लेट अस रीड द चैप्टर इन डिटेल. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. जेम्स हैरियट कहते हैं कि इस बार वो ट्रिकी को लेकर सचमुच में चिंतित थे. जब उन्होंने ट्रिकी को अपने मालकिन के साथ गली में देखा, तब उन्हें अपनी कार को रोक लेना पड़ा और ट्रिकी को देखकर उन्हें सदमा पहुंचा. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. वह मोटा हो चुका था, एक फूले हुए कबाब की तरह, जिसके चारों कोनों पर 4 टांगें दिखाई देती थी. उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, उनसे पानी बह रहा था. वह बिल्कुल सामने देख रहा था और उसकी जीभ जबड़े से बाहर लटक रही थी. Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Herriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मिसेस पम्फ्रे हैरियट से को बताती हैं कि कुत्ता पहले कुछ समय से कमज़ोर और बेजान सा दिखाई दे रहा था और उन्होंने सोचा कि वह अवश्य ही कुपोषण का शिकार हो गया है. उन्होंने उसकी नियमित खुराक के साथ उसे माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स अतिरिक्त रूप में देना शुरू कर दिया था. And did you cut down on the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream, cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. जब मिस्टर हैरियट ने पूछा मिसेस पम्फ्रे से कि क्या उन्होंने उसे मीठी चीज़ें खिलाना कम किया है या नहीं, तो वह उत्तर में कहती हैं कि उसने कोशिश की थी, परंतु असफल रही. उसकी राय में ट्रिकी क्रीम केक्स और चॉकलेट को इतना पसंद करता है कि वह उसे मना नहीं कर पाती. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mr. Pumphrey hadn't mentioned. मिस्टर हैरियट फिर से उस छोटे से कुत्ते को देखते हैं और समझ जाते हैं कि समस्या कहाँ थी. ट्रिकी का एकमात्र दोष लालच था. उसने भोजन के लिए कभी मना नहीं किया था. वह दिन या रात कभी भी भोजन कर लेता था और हैरियट उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जो कि मिसेस पम्फ्रे ने बताया ही नहीं. Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkins, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. डॉक्टर को ट्रिकी की ऐसी पौष्टिक खुराक पर चिंता होती है. निराशा में ही उनसे वो पूछते हैं कि क्या वह उसे भरपूर व्यायाम करवाती हैं.
मिसेस पम्फ्रे बताती हैं कि ट्रिकी कभी कभार थोड़ी दूर सैर कर लेता है, परंतु रिंग फेंकने जैसा खेल अब नहीं खेलता क्योंकि उनका माली हॉजकिन कमर दर्द से ग्रसित था। I tried to sound severe. Now, I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. मिस्टर हैरियट गंभीरता से कहते हैं कि यदि आपने इसके भोजन में तुरंत कमी नहीं की और पर्याप्त व्यायाम नहीं कराया तो वह सचमुच में बीमार हो जाएगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा और उसे एक तय खुराक देनी ही होगी। Mrs. Pumphrey wrung her hands. "Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult." She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. श्रीमती पम्फ्रे बेचैन हो गईं और कहती हैं, "ओह, मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट। मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल सही हैं, परंतु यह बहुत कठिन कार्य है, बहुत ज़्यादा कठिन है।" और यह कह के वो चल पड़ी, अपने सिर को झुकाए सड़क के किनारे किनारे, जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि वो अपने नए नियम को तुरंत अमल में लाएंगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet weather. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मिस्टर हैरियट बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखे। ट्रिकी अपनी ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके पास ऐसे कोटों की पूरी अलमारी थी। शीत ऋतु के लिए ऊनी कपड़े और वर्षा ऋतु के लिए बरसाती थी। अपने सजावटी कपड़ों में वह लड़खड़ाता हुआ चलता गया और मिस्टर हैरियट समझ गए कि शीघ्र ही मिसेस पम्फ्रे से बुलावा आएगा। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dish, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. ही दिनों के अंदर अपेक्षित बुलावा आ गया। मिसेस पम्फ्रे दुखी थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। उसने अपना मनपसंद भोजन भी छोड़ दिया था और उसके अलावा उसके बार बार उल्टी भी आ रही थी। वह पूरा सारा समय कालीन पर लेटकर हाँफते हुए बिता रहा था। वह न तो घूमने जाना चाहता और न ही कुछ करना। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मिस्टर हैरियट पहले ही से अपना योजना बना लिए थे। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र उपाय उसे घर से कुछ दिनों के लिए बाहर निकालना था। उन्होंने सुझाया कि उसे एक फोर्टनाइट के लिए अस्पताल में दाखिल करा देना चाहिए ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। Poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. बेचारी मिसेस पम्फ्रे लगभग बेहोश हो गईं। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर ट्रिकी उन्हें रोज़ नहीं मिला तो वह तड़पकर मर जाएगा।
But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. लेकिन हैरियट कठोर रुख बनाए रखे। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। हैरियट यही उचित समझे कि बगैर देरी के उसे वहाँ से ले जाया जाए। उस छोटे से कुत्ते को एक कंबल में लपेट कर जब हैरियट अपनी कार की तरफ बढ़े तो मिसेस पम्फ्रे रोने लगती हैं और उनके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. मिसेस पम्फ्रे अपने ट्रिकी के से इतने दिनों की जुदाई के विषय में सोच भी नहीं सकती थी। उनकी नौकरानियाँ और अन्य कर्मी ट्रिकी का दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, मनपसंद गद्दियाँ, खिलौने, रबड़ के रिंग आदि लाते हैं ताकि वह अस्पताल में आराम का अनुभव कर सके। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. और यह अनुभव करते हुए कि ये सभी चीज़ें मेरी कार में समा नहीं पाएंगी, मिस्टर हैरियट कार चलाना शुरू कर दी। हम्फ्रे ने एक निराश भरी चीख के साथ बाजू में भरकर छोटे छोटे कोट मेरी कार की खिड़की के अंदर फेंक दिए। कोने से मुड़ने से पहले मिस्टर हैरियट शीशा में देखे कि सभी रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head, and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. सड़क पर आकर मिस्टर हैरियट उस दयनीय प्राणी पर निगाह डालते हैं जो उनकी बगल की सीट पर बैठा लंबी लंबी सांस ले रहा था। मिस्टर हैरियट उसके सिर पर थपकी देते हैं और ट्रिकी अपनी पूंछ को हिलाने का बहादुरी भरा प्रयास करता है। मिस्टर हैरियट कहते हैं, बेचारा बुढ़ा कुत्ता, इसके अंदर बिल्कुल भी स्फूर्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे पास तुम्हारा इलाज है। In this way, Tricky is brought to the hospital. I hope that you all understood this part of the chapter. I will continue the same part in my second video. Till then, keep watching, dear ma'am.